खुदा उनके जिंदा जलाली बरकत नाम में आप सब बहन भाई जितने भी इस टाइम बाइबल टीवी पर वॉच कर रहे हैं, आपकी खिदमत में इस्लाम और खुदा उनका शुक्र अदा करते कि खुदा ने आज मौका दिया, वक्त दिया ताकि हम खुदा उनकी हजूरी में आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें, क्योंकि कलाम में लिखा है जो शुक्रगुजारी करता है वो खुदा की तमजीद करता है। और कलाम ये भी कहता है कि हर बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करो। सो मेरे अजीजों, जब हमें खुदा वक्त देता है, हमें कोई एक सेकंड भी मिलता है, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मेरे अजीजों हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स के ऊपर पड़े होते हैं, लेकिन उनके पास वो मुश्किल के अंदर है, सफरिंग के अंदर है, लेकिन हमें वी आर ऑलवेज नीड टू थैंकफुल टू आवर लॉर्ड, क्योंकि खुदा जो है वो हमें मेरे अजीजों एक एक जो लम्हा प्रोवाइड करता है, एक एक जो बरकत देता है, ब्लेसिंग्स देता है, उसके लिए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उसके नाम को जलाल देना चाहिए। सो जितने भी बाइबल टीवी पर देख रहे हैं, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, और जितना आप अच्छा फीडबैक देते हैं, थैंक यू सो मच माय डियर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर व्यूअर्स ऑफ बाइबल टीवी। सो खुदा हमेशा आपको अपनी प्रोटेक्शन, अपनी पनाह में महफूज रखे। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम का आगाज करें, टुडे विद अस माय ग्रेट ब्रदर मैन ऑफ गॉड Pastor Ted with us. So we welcome you, my dear brother, Pastor Ted, on Bible TV. Well, thank you for having me. I'm so honored and humbled to be here to share God's word with you today. Thank you. Amen. Praise the Lord. Before we continue to our talk for Bible TV, I want we start with prayer today's program. Yes. Do you want me to pray? Hallelujah. So can you pray, please? Yes. Yes. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for many blessings that we have in our Lord Jesus. He is our blessed hope. He is our Prince of Peace. He is the King of Kings and Lord of Lords. We thank you, Father, for the blessed Holy Spirit and the precious Word of God. We thank you for the many promises, especially where you say nothing can separate us from the love of God that's in Christ Jesus. So we pray you bless our time today in your word. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So praise the Lord. Hallelujah. We give all glory to our God. So brother, I want to ask you, first of all, when you accept the Jesus Christ, how you came in Christ? It was actually August 7th, 1980. Almost 21 years ago, I accepted the Lord Christ on my aunt's farm in Pennsylvania. Praise the Lord. In Pennsylvania. Yeah, I was 25 years old. Right, that time you was 25-year-old. Yes. Amen. Praise the Lord. So before this, you was already in Christ, or how you experienced? Yeah, I was kind of, religious person. I hardly ever went to church ever, I had God up here, but not over here. Right. A lot of people know about God or maybe religious, but they don't have a relationship with Jesus there. Yeah. That's the key. You got to receive him into your life as your Lord and Savior, and that's the relationship God is desiring for everyone. Right. Yeah. Yeah, because this is because many people go in church, give offering and fasting, prayer, but they not know about Jesus from heart and from brain, because they only go in churches because their parents are going, their friends are going in church, so they only go for attend the church. Yeah, they think going to church is something good for them to do. It's something that they have to do, maybe. But for us to go to church, we go to church to worship Jesus, to bless the Lord, and to bless Him. So Amen. Praise Jesus. So
I visit your website. I am so blessed. We give all glory to God because you are doing very great ministry of work. Mhm. Yes. Well, right now I'm a missionary evangelist. I'm also an author. I have a book out. It's called At the Crossroads of Life. Right. Where Are You, God? There you go. Yeah, very beautiful topic. And so that's kind of my life story, you know, and they could buy it. They could find it on Amazon.com and Kindle. It's kind of my testimony of how I was before Jesus and when Right. Jesus saved me and how Jesus directed my life. Because my sister, it's very clear. God's word is a lamp unto our feet and a light unto our path. God will guide us if we let him. And where Yes. God guides you, he provides for you. Where he Yes. directs you, he protects you. Amen. Amen. Praise the Lord. I appreciate you because you have a great testimony, my brother. So how much this book cost? Because many people are watching on Bible TV. So maybe some people want to interested to purchase this book for blessing. Well, I think on Amazon, sometimes you could buy used ones, but some of the new ones, I think on Amazon are like $12 or something like that. $12 USA $12 Yeah. cost of this book. Amazon.com. Yeah, it's called Amazon. So जितने भी अगर बाइबल बुक को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इस बुक की जो कीमत है $12 है, $12 है, तो आप जरूर खरीद सकते हैं Amazon.com से, ताकि आप बरकत पा सकें और खुदा उनके नाम को जलाल दे सकें। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा उनका कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा खुदा उनके कलाम को पढ़ने की और सुनने की और उस पर अमल करने की जरूरत है। क्योंकि कलाम में लिखा है, इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। सो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए और जलाल के बादशाह को जलाल देते हैं। हालेलुया। और यीशु के नाम की तमजीद करते हैं क्योंकि वो अजीम खुदा है। सो बिकॉज मैनी पीपल आर वाचिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रदर डैड राइट नो, so especially in Pakistan, because we are from Pakistan. So praise Jesus, hallelujah. Maybe some problem in internet. So हर एक बात के लिए हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो भला खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है। और यकीनन मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदावंद से मांगते हैं तो कलाम में लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि अजीज रखता है। और कलाम तो कहता है कि तू कहना चुकेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। और मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद से दुआ करते हैं, वो अपने लोगों की दुआ को सुनता है और जवाब देता है। सो ब्रदर टेड, अगेन वी वेलकम यू ऑन बाइबल टीवी बिकॉज सम प्रॉब्लम disconnect maybe. I have one question for you. Your voice is not coming. Hallelujah. Praise Jesus. Your voice not coming. I am not listening you. Praise Jesus. Hallelujah. तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि अगर कोई आज खास तौर पर मेरे अजीजों, जैसा कि फिर से जो है ये डेल्टा वायरस फैला हुआ है, मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। जो खास तौर पर कराची में लोग हैं, बहुत सारे लोगों की मैंने सुना कि मौत भी हुई है, डेथ हुई है। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदा उनके कभी बाजू को मांगेंगे, दुआ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ताकि खुदावंद अपने लोगों को अपनी प्रोटेक्शन में रखे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ खुदा उनका फरिश्ता क़यामतन रहता है। सो आए अपने सरों को झुकाएं, हम एक दुआ करेंगे और उसके बाद पास्टर टेड के साथ we will continue talk with Pastor Ted. Hallelujah. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस पाक, खुदा यीशु के नाम से मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ पाक को हम देख इस वक्त के लिए। और हम देख खास तौर पर पाक को हम देख डेल्टा वायरस पाक, हम देख वायरस जो फैला हुआ है पाक खुदा, इस यीशु के नाम से वायरस को हम तेरे हैंड ओवर करते हैं
क्योंकि खुदावंदे कोई बीमारी, दुख और तकलीफ तेरे लोगों को टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता मेरे पाक खुदा। खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पाक खुदावंदे इस वक्त मुश्किल हालत के अंदर है, जिनको कोरोना वायरस हुआ है पाक खुदा, डेल्टा वायरस हुआ है, इस सारे वायरस के ऊपर तेरा पाक रूह यीशु के नाम से गालिब आए, ताकि तेरे लोग शिफा पाए और तेरे नाम को जलाल दे। तेरे फरिश्ते इनके चारों तरफ कैमाजन रहे और इनको इसी तरह घेर ले पाक खुदा, जिस तरह तूने यरूशलेम को पहाड़ों से घेर रखा है, ताकि ये अंदर आते बाहर जाते मुबारक ठहरे। और तेरा पाक रूह मसीह के नाम से इनको अपनी प्रोटेक्शन, अपनी पनाह में महफूज रखे, क्योंकि तू हमारी पनाहगाह है, तू हमारे छिपने की जगह है। इन मेरे प्यारों को, इनके किडनीज को, इनके लंग्स को, इनकी ब्रीथ को, इनके सांसों को मैं तेरे हैंड ओवर करते, ताकि तेरा पाक रूह मुकम्मल तौर पर इनको शिफा बख्शे और उम्र की दराजी दे, मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज जीसस। So brother, are you listening me? I am not listening you. Hallelujah. Glory to Jesus. Maybe some problem in volume. So we give all glory to God because this is media. और मेरे अजीजों, कोई भी मीडिया की चीज होती है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो जाता है। हर एक बात के लिए हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं। तो अभी हमारी प्यारी बहन जो सिस्टर अनीला है, उनकी वालदा की डेथ हुई कराची के अंदर। हम उनके गमजदा खानदान के लिए भी उनके गम में शरीक हैं और खुदा उनको, उनके खानदान को तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी बख्शे। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें अपनी हिफाजत करनी है। बेशक बीमारी फैली हुई है, लेकिन हमें अपना खास ख्याल रखना है, अपने हाथों को धोना है, ऐसे किसी दूसरी जगह को टच नहीं करना। और खास तौर पर जहां पर किसी को खांसी है, नजला है, जुकाम है, उन लोगों को खुद भी चाहिए कि वो अवॉइड करें, ताकि दूसरे लोगों से सोशल डिस्टेंस रखें, ताकि दूसरों को ये बीमारी ना फैल सके। तो हम जब खुद केयर करेंगे तो खुदावंद खुद ब खुद हमारी केयर करेगा, क्योंकि वो हमारा हिफाजत करने वाला खुदा है, वो हमारा महाफिज है, वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारी छिपने की जगह है। सो बहन अनीला, खुदावंद आपको, आपके खानदान को तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान बख्शे, ताकि आप यीशु की पनाह में महफूज रहें। और इसी तरह अगर किसी और खानदान का भी कोई खुदावंद मिस हो गया है, तो खुदावंद आपको भी, मेरी बहन, मेरे भाई, तसल्ली, इत्मीनान बख्शे, ताकि आप यीशु के हिफाजत में रहें और खुदावंद की पनाह में महफूज रहें। प्रेज जीसस। हालेलुया। हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए। अगरचा जिंदगी और मौत जो है वो खुदावंद के हाथ के अंदर है, लेकिन हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, ताकि हम दूसरों को भी सेव कर सकें और खुद भी सेफ हो सकें। क्योंकि हमें कलाम में लिखा है कि ना सिर्फ मेरे अजीजों, हमें अक्ल के साथ भी चलना है और रूह के साथ भी चलना है। क्योंकि कलाम में लिखा है, अक्लमंद वो इंसान है जो बला को देखकर छिप जाता है और बेवकूफ जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपना खास ख्याल रखना है। सो ब्रदर, आर यू लिसनिंग मी? Praise Jesus. Hallelujah. Your voice is not coming, so I am not listening you. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदा उनकी तारीफ हो, क्योंकि वो अजीम खुदा है, वो भला खुदा है, वो हले मुश्किलात है, वो कादरे मुतले खुदा जो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। सो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। हमारे साथ सिस्टर शुमाइला जावेद हमारे साथ है। जी सिस्टर शुमाइला जावेद, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको अपनी पनाह में महफूज रखे और आपके दिल की मुरादों को पूरा करे, ताकि आप यीशु के जलाल में बढ़ती और तरक्की करती चली जाएं। आर यू लिसनिंग माय ब्रदर? आई एम नॉट लिसनिंग यू। हालेलुया। सो ब्रदर रिक जो also with us, he also saying greetings from USA Texas. Thank you so much brother Rick Jo. God bless you. खुदावंद आपके साथ हो। God bless your ministry work and God bless your family.
if any person have any problem, any prayer request, you can call us 267-912-1114. सो अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है सो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आप कॉल करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है. प्रेज जीसस, हालेलुया. सो ब्रदर, आर यू लिसनिंग मी? But I am not listening you. Hallelujah. So brother, sister Shumaila Javed, खुदाम आपके साथ हो, खुदाम आपको बड़ी बरकत दे, खुदाम का कभी बाजू आपको अपनी पनाह में महफूज रखे, ताकि आप यीशु के जलाल में बड़े तरक्की करें और खुदाम की प्रोटेक्शन में रहें. प्रेज जीसस, हालेलुया. अगर कोई भी आप लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है आप जरूर भेजें, ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं. और इसी तरह मेरे अजीजों, मैं जितने भी गमज़दा खानदानों के लिए बात कर रही थी, मैं दुआ भी करना चाहती हूँ, ताकि उन खानदानों को खुदावंद तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी बख्शे. क्योंकि मेरे अजीजों, जिनका कोई अजीज बिछड़ जाता है वही जानते हैं, और उन्हीं को उस गम का एहसास होता है. इसलिए हमें भी उन खानदानों के लिए खास तौर पर दुआ करने की जरूरत है. हालेलुया. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस पाक खुदा यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ मेरे पाक खुदा, अपने इन गमज़दा खानदानों के लिए जो पाक हम देख टाइम ऑफ कोरोना वायरस, पाक हम देख वो तुझ में सो गए. पाक हम देख इन मेरे प्यारों को तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी का रूह देना, ताकि ये तेरे जलाल में बढ़े, तेरे पाक रूह में बढ़े, और तेरा पाक रूह हमेशा इनको अपनी पनाह में महफूज रखे. और कम देख मेरी दुआ है जो हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त पड़े हुए हैं, खुदाम इनको भी उठा खड़ा कर, ताकि तेरी गवाही का बायस ठहरे. और जो भी पाक हम देख इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को भी तेरा पाक रूह सॉल्व करे, ताकि जल्द हम तेरे कलाम की आवाज को सुनकर तेरी शुक्रगुजारी करें और जलाल के बादशाह तुझे जलाल दे, यीशु के नाम में, आमीन. Hallelujah. Praise Jesus. Glory, wonderful Lord. Hallelujah. Hallelujah. So हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, क्योंकि वही हले मुश्किलात है. जब आप परेशान होते हैं तो आप जरूर खुदावंद के साथ लिपटे रहा करें, खुदावंद के साथ मेरे अजीजों मिले रहा करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उससे मिला रह तो तू सलामत रहेगा और उसी से तेरा भला होगा. जब हम खुदावंद के साथ मिले रहते हैं तो यकीनन खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करता है, और खुदावंद अपने लोगों को अपनी पनाह में महफूज रखता है, क्योंकि वही हमारी पनाहगाह है और वही हमारी छिपने की जगह है. प्रेज जीसस. आज हम मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं दुआ करती हूँ कलाम के लिए, ताकि क्योंकि सम प्रॉब्लम्स हुई हैं इंटरनेट के अंदर, खुदा के खादम ने कलाम शेयर करना था. सो मे बी उनको उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही, या मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची. ब्रदर, आर यू लिसनिंग मी? हालेलुया. लेकिन मैं अब कलाम के लिए दुआ करूंगी, ताकि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं, और इसके बाद मैं दुआ करूंगी आपके लिए, ताकि मेरे अजीजों, अगर कोई बीमार है, परेशान है, दुख में है, टेंशन में है, दुआ के वसीला से कलाम में लिखा है कि बीमारियां, दुख और तकलीफें जाती रहती हैं. सो आए अपने सरों को झुकाएं, मैं कलाम के लिए दुआ करूंगी. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस पाक खुदा, यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ पाक खुदा, अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा, ताकि पाक हम देख जब मैं तेरे कलाम को शेयर करूं तो आज का कलाम मसीह यीशु के नाम से मेरे पाक खुदा इन मेरे प्यारों के लिए बरकत का बायस बने, पाक हम तकवीयत का बायस ठहरे, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें. आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए मुअस्सर साबित हो. पाक हम देख तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है मेरे पाक खुदा. सो तू अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ा, कलाम कर, हम सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब तू बोलता है तो पाक खुदा यकीनन बंधन टूट जाते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं. यीशु के नाम से अपने नाम की खातर
ऐ पाक हम देख मसीह का जलाल जाहिर करना, ताकि एक एक जिंदगी के लिए आज का कलाम मुयस्सर साबित हो। ऐ पाक हम देख मैं अपने आप को पीछे करती, तुझे आगे करती, ताकि आज के कलाम के वसीला से जितने लोग सुने और बरकत पाए और तेरी शुक्रगुजारी करेंगे यीशु के नाम में, आमीन। आए हम पाक रूह को, खुदा के कलाम को जोरदार तालियों में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। ग्लोरी टू जीसस, प्रेज वंडरफुल लॉर्ड। सो जितने भी बाइबल टीवी पर देख रहे हैं, अगेन वी वेलकम यू ऑन बाइबल टीवी। आप बाइबल टीवी के पेज को अपने ग्रुप्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा फैलता और तरक्की पाता चला जाए। क्योंकि मेरे अजीजों, जब आप खुदा का काम करते हैं तो खुदावन अपने नाम की खातिर जो है यकीनन वो आपको फिर बरकत देता है। हालेलुया। ब्रदर डेनिस प्रोसेस इज आल्सो वॉचिंग अस। सिस्टर समझ जवेद, हम आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। और खुदा का पाक रूह आपको, आपके घराने को बड़ी बरकत दे। सो जितने भी प्यारे देख रहे हैं, जरूर पेज को शेयर कीजिए, ताकि जो खुदा का कलाम है वो फैलता और तरक्की पाता चला जाए। हालेलुया। तो आए अपनी रहनुमाई के लिए हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। आज कलाम जो था वो खुदा के खादम पास्टर टेड ने शेयर करना था, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई, उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही, तो लेकिन हर एक बात के लिए हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं। आइए हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे यसाया, बुक ऑफ अजाया, यसाया की किताब चैप्टर 38 और उसकी हम पहली 10 आयात में से देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से। और लिखा है कि उन ही दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यसाया नबी अमूस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यसाया पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को कोहे असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं इस शहर की हमायत करूंगा। और खुदावंद की तरफ से तेरे लिए ये निशान होगा कि खुदावंद इस बात को जो उसने फरमाई पूरा करे। देख मैं आफताब के ढले हुए साया के दर्जों से इकस की धूप घड़ी के मुताबिक 10 दर्जा पीछे कर लौटा दूंगा। चनाचा आफताब जिन दर्जों से ढल गया था, उनके 10 दर्जे फिर लौट गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा ने हमें मुहैया किया। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से कि हिजकिय्याह जो है ये खुदा का खादम है, ये खुदा का ममसूह है, ये रास्तबाज इंसान है, ये खुदावंद के साथ चलने वाला, मेरे अजीजों खुदावंद के खौफ के अंदर रहने वाला, खुदा से लिपटे रहने वाला और सच्चाई के साथ चलने वाला, और मेरे अजीजों आंसू के साथ दुआ करने वाला ये शख्स, जो मेरे अजीजों कलाम में लिखा है कि रास्तबाजों के लिए मुसीबतें, दुख और तकलीफें बहुत सारी हैं। ये हिजकिय्याह नबी जो है एक्चुअली ये खुदावंद का रास्तबाज इंसान है। क्योंकि रास्तबाज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि वो खुदावंद के खौफ में चलता रहा, वो सच्चाई के साथ खुदावंद से लिपटा रहने वाला,
और क्या हुआ मेरे अजीजों, एक्चुअली इसके ऊपर एक आजमाइश आ गई बीमारी की सूरत के अंदर। जब कभी आजमाइश आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, अगर आप मेरे अजीजों अगर आप खुदावंद के साथ चलते हैं तो आप इंसान हैं, किसी खादम के ऊपर भी बीमारी आ सकती है, किसी इंसान के ऊपर भी बीमारी, दुख और तकलीफ आ सकता है, परेशानी आ सकती है, क्योंकि ये इंसान है। तो इसलिए ये खुदा का खादम है और इसको मेरे अजीजों कलाम कहता है कि ये बीमार पड़ गया। बीमार क्या पड़ गया कि इसके फोड़ा निकल आया। एक मेरे अजीजों जिसको आज के दौर में हम ट्यूमर भी कहते हैं, ये ट्यूमर इसकी बॉडी के अंदर हो गया, फोड़ा निकल आया, मे बी वो कैंसर का फोड़ा हो। लेकिन मेरे अजीजों और खुदा जब इसको वो बीमारी की सूरत में ट्यूमर इसको हो गया तो ये मेरे अजीजों यशायाह नबी जो है उससे खुदा कलाम करता है और उससे यशायाह से खुदा कहता है कि जाकर हिजकिय्याह से कह दे, मेरे खादम से, मेरे बंदा से, मेरे ममसू से कह दे, मेरे प्यारे से कह दे कि अब तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले, कि ताकि क्योंकि तू अब क्या होगा, मर जाएगा, अब तू बचने का नहीं, क्योंकि तेरी जिंदगी का मेरे अजीजों कलाम कहता है कि जिंदगी और मौत किसके हाथ के अंदर है, खुदा के हाथ के अंदर है। तो यशायाह को खुदा पैगाम देता है कि हिजकिय्याह से जाकर कह कि अब तू मर जाएगा और बचने का नहीं। मेरे अजीजों यशायाह जो है वो खुदा का पैगाम लेकर हिजकिय्याह के पास जाता है और हिजकिय्याह से कहता है कि कलाम खुदा ने मुझसे कलाम किया है कि अब तू मर जाएगा, अपने घर का बंदोबस्त कर ले, अपने घर का अरेंज कर ले। जैसा कि आप सबको पता है कि लोगों बीमारी जब आती है, दुख तकलीफ आता है तो लोग अपनी मेरास को जो है वो अपने बच्चों के नाम करते हैं, अपनी बीवी के नाम करते हैं, शोहर जो है वो अपनी बीवी के नाम, बीवी अपने शोहर के नाम। सो मेरे अजीजों इसी तरह खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि तू अपने घर का क्या कर ले, बंदोबस्त कर दे। लेकिन मेरे अजीजों जब यशायाह वहां पर पहुंचता है, जाकर उसको खुदावंद का पैगाम देता है और कहता है कि तू बंदोबस्त कर अपने घर का, क्योंकि तू अब मर जाएगा और बचने का नहीं है। तो मेरे अजीजों आप देखें कि हिजकिय्याह क्या करता है। हिजकिय्याह अपना मुंह जो है वो दीवार की तरफ कर लेता है। वो कौन सी दीवार है मेरे अजीजों, वो खुदावंद की तरफ अपना रुख कर लेता है और जार जार कलाम में लिखा है कि वो आंसुओं के साथ रोता है। और मेरे अजीजों लिखा है कि तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से क्या की, दुआ की। आज क्या हम ऐसा करते हैं कि जब हमें हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई टेंशन आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, तो मेरे अजीजों हमें भी क्या करना चाहिए, हिजकिय्याह की तरह क्या करना चाहिए, अपना रुख खुदावंद की तरफ कर देना चाहिए। अपनी मेरे अजीजों अपनी जो अपना सब कुछ है छोड़कर हमें खुदा से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हले मुश्किलात है, वो नामुमकिनात का खुदा है, वो कादिर मुतलिक खुदा जो मुश्किलात के अंदर आसानियां पैदा कर देने की कुदरत रखता है, जो मौत को जिंदगी में बदल देने की कुदरत रखता है, जो मेरे अजीजों तूफानों को थमा देने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीजों हिजकिय्याह ने क्या किया कि हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और दुआ किससे की, खुदावंद से दुआ की। आज हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर मुश्किल आ जाए मेरे अजीजों तो हम डॉक्टरों की तरफ भागते हैं। अच्छी बात है, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें दुआ जरूर करनी चाहिए। हमारा फोकस जो है वो खुदावंद के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टरों को भी हिकमत देने वाला है वो कौन है, वो खुदावंद ही है मेरे अजीजों, क्योंकि जिंदगी का मालिक खुदावंद है। तो इसलिए मेरे अजीजों उसने दुआ किससे की, खुदावंद से दुआ की। और दुआ किस तरह की, कलाम में लिखा हुआ है, तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और क्या कहा, और कहा आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं। अब देखें कि मिन्नत करता हूं कि याद फरमा के मैं तेरे हजूर सच्चाई
और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। मेरे अजीजों, उसका रिलेशन किसके साथ था? खुदावन के साथ था। उसका तल्लुक खुदावन के साथ था, वो बाप के साथ उसका रिलेशन था। तो इसलिए आज हमें भी जरूरत है कि जब कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, टेंशन आ जाए, बीमारी की स्पिरिट हमारे ऊपर अटैक कर दे, हम हिम्मत हार जाते हैं। कलाम में लिखा है कि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। तो हमें कभी बेदिल नहीं होना चाहिए, बल्कि बीमारी का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो मेरे अजीजों, खुदावन जो है वो यकीनन अपने लोगों की आवाज को सुनकर जवाब देता है, और अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है। हालेलुया, प्रेज जीसस, ग्लोरी वंडरफुल लॉर्ड। सो हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए। तो मेरे अजीजों, कलाम कहता है कि और आगे लिखा हुआ है कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि याद फरमा के मैं पूरे दिल से और सच्चाई से चलता रहा हूँ। और मेरे अजीजों, जो खुदा की नजर में भला था, उसने कहा कि मैंने वही किया। और कलाम कहता है कि बस सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे अजीजों, जब हम पूरे दिल के साथ खुदा के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलते हैं, अपने खुदावन पर फोकस रखते हैं, तो यकीनन खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनकर उनका क्या करता है? वो जवाब देता है। आप अदालतों के अंदर हो, आप हॉस्पिटल्स के अंदर हो, आप बीमारी के बिस्तर के ऊपर पड़े हो, आप मेरे अजीजों जहां पर भी खड़े हो, आप भूख के अंदर हो, नंग के अंदर हो, वहां पर खुदावन आपका लिए आंसर बन जाता है, दुआ का जवाब देता है। आप देखिए मेरे अजीजों, ये मर के बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, ये मरने के करीब है, इसका आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन इसने अपना अपना रुख जो है वो खुदावन की तरफ कर लिया। अगर आप भी ना उम्मीद हो चुके हैं, अगर आप भी बेदिल हो चुके हैं, आपको उम्मीद नजर नहीं आती, आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आपको मेरे अजीजों आपके लॉयर ने जो है वो आपको कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप अपना तवक्कल खुदावन पर करें, क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो इंसान जिसका तवक्कल खुदावन पर है, लेकिन मौलाउन है वो इंसान जो इंसान को जोरे बाजू जानता है। आज हमें थिंकिंग करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। वी नीड टू फोकस आवर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, क्योंकि वही हमें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। वो कभी भी बीमारी में ना पड़ा रहने देगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाज गिर भी जाएगा तो वो गिरा ना रहेगा, बल्कि मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। तो जब मेरा और आपका खुदावन जो मेरे अजीजों पानी के अंदर भी मेरे अजीजों तूफानों में उतर कर बचाने की कुदरत रखता है, आग की तपश से बचा लेने की कुदरत रखता है, वो मौत के मुंह से निकाल लेने की कुदरत रखता है, तो फिर हमें घबराने की क्यों जरूरत है? आप देखें कि डैनियल जो मौत के मुंह के अंदर पड़ा हुआ था, शेरों की मांग के अंदर डाल दिया गया था, क्या खुदा ने उसकी आवाज को नहीं सुना? शेरों के मुंह को बंद नहीं किया, कर दिया। वो आपके लिए भी बंद करने की कुदरत रखता है। जो लोग आज आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, वही लोगों के मुंह जो है वो जिस तरह शेर डैनियल के सामने शेर खड़े थे उनके मुंह को बंद किया, वो आज खुदावंद आपके भी जो खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उनके मुंह को बंद करके आपकी दुआओं का जवाब देगा। और इसी तरह मेरे अजीजों, सदरक मिस्र और अबेदनगो को हम देखें, क्या खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब नहीं दिया? मेरे अजीजों, वहां के जो वहां का जो बादशाह था उसे अनाउंस कर दिया कि कोई भी किसी और का नाम लेकर दुआ नहीं करेगा, लेकिन जो मेरे अजीजों सदरक मिस्र और अबेदनगो थे वो दुआ करते थे। और मेरे अजीजों, जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया तो आग की तपश को किसने ठंडा कर दिया? मेरे और आपके खुदा ने। वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदा, वो आज भी आपके लिए मेरे अजीजों हर वक्त बेदार रहता है, आपकी दुआओं को सुनने के लिए, आपकी दुआओं का जवाब देने के लिए। वो हमेशा मेरे अजीजों खुदावंदों का खुदा, वो लश्करों का रब जो है वो हमेशा आपकी दुआओं का जवाब देता है। सो हम बात कर रहे थे
हिजकिय्याह नबी के ऊपर कि हिजकिय्याह ने दुआ की और उसने खुदावंद को वादे याद फरमाए कि मैं तेरे साथ पूरे दिल पूरी सच्चाई के साथ चलता रहा हूं और मैंने वही काम किए हैं जो तेरी नजर में भले हैं। आज हमने भी देखना है कि क्या हम वो काम कर रहे हैं जो खुदा की नजर में भले हैं। हम पूरे दिल के साथ चल रहे हैं। क्यों खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा? मेरे अजीजों, आंसर हमारा यहीं पर मौजूद है कि हम पूरे दिल के साथ नहीं चलते, इसलिए हमें जवाब नहीं मिलता। हम सच्चाई के साथ नहीं चलते, इसलिए हमें जवाब नहीं मिलता। हम वो काम नहीं करते जो खुदा की नजर में भले हैं। हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। फिर हम कहते हैं जी हम इतनी दुआएं भी करते हैं, रोजे रखते हैं, हम दायगी देते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं, खुदावंद हमारी नहीं सुनता। आज हमने भी चेक करना है कि जब यहाँ पर उसने कहा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई से चलता रहा हूं, पूरे दिल से चलता रहा हूं और मैंने वही काम किया जो तेरी नजर में क्या है, भला है। और आगे लिखा है कि और हिजकिय्याह जार जार रोया, वो तेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज हम आंसुओं के साथ हमें जरूरत है दुआ करने की। आज हमें खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत है। आज हमें मेरे अजीजों खुदावंद के सामने जाने की जरूरत है, खुदावंद के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। और कलाम कहता है कि वो तेरी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। क्या ना पोंछे हिजकिय्याह नबी की आंखों के आंसू? क्योंकि वो जार जार, यहाँ पर कलाम में लिखा है कि वो रोया। और मेरे अजीजों, जब वो रोया तो कलाम में लिखा है कि तेरा गम ही खुशी में बदल जाएगा। ये कलाम कहता है कि तेरा गम ही खुशी में बदल जाएगा। तो मेरे अजीजों, आज अगर हम भी गमज़दा हैं, आज अगर आप भी परेशान हैं, अगर आप नाउम्मीद हो चुके हैं, तो आज हिजकिय्याह की तरह खुदावंद के सामने झुक जाइए, दुआ कीजिए और उसके साथ पूरे दिल पूरी सच्चाई के साथ चलना शुरू करें, ताकि वो जिंदा खुदा आपकी दुआ को सुनकर जवाब दे। और आगे हम पढ़ते हैं और मेरे अजीजों, अभी वो खुदावंद के आगे झुका हुआ था, तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी। अब देखिए मेरे अजीजों, अभी वो पैगाम देकर गया है यशायाह और वो दुआ के अंदर बैठ गया है हिजकिय्याह, और दुआ अभी खत्म नहीं की तो खुदावंद ने दोबारा यशायाह से कलाम किया कि जाकर हिजकिय्याह से कह दे और पैगाम दे कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है जो तूने मेरी हजूरी में की है। तो मेरे अजीजों, खुदा यकीनन अपने लोगों की आवाज को सुनता है। और कलाम कहता है कि और हिजकिय्याह से कह खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, मैंने तेरे आंसू देखे। आज हम क्या आंसुओं के साथ दुआ करते हैं? आज क्या हम दिल के साथ खुदा से दुआ करते हैं? आज क्या हम सच्चाई से दुआ करते हैं? आज अब क्या वही काम करते हैं जो भलाई के काम है? आज हम तो देखते हैं कि कोई हमारे इर्द गिर्द गिरा हुआ है तो हम कहते हैं एक चक्का इसको और दे दो। अगर हम आज कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है तो हम उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो मुखालफत कर रहे होते हैं, जो बुरा बोल रहे होते हैं। हमें सच्चाई के साथ खुदा उनके कलाम के मुताबिक चलने की जरूरत है। सो मेरे अजीजों, खुदा ने का यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। खुदा जो है वो उम्र भी आपकी बढ़ाने की कुदरत और कुव्वत रखता है, क्योंकि वो पावरफुल लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है। वो कुदरत वाला खुदा, वो हले मुश्किलात जो मेरी और आपकी मुश्किलात में आपके साथ खड़ा होता है। सो आज अगर आप मेरे अजीजों बीमारी के बिस्तर पर हैं, अगर आप परेशानी की हालत के अंदर हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं, आप जॉबलेस हो चुके हैं, आपका बिजनेस फ्लॉप हो चुका है, आपकी बॉडी के अंदर वो ताकत बाकी नहीं रही, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज आंसुओं के साथ
खुदावंद के आगे झुकने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई के साथ, पूरे दिल के साथ, और वही काम करने की जरूरत है जो खुदावंद की नजर में भले हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदावंद फिर हमें बरकत देगा और खुदावंद हमें, मुझे और आपको अपनी पनाह में महफूज रखेगा जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलेंगे। अगर चाहे मेरे अजीजों डॉक्टर आपको कह दे कि आप अब ठीक नहीं हो सकते, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपको चैलेंज करती हूँ कि है वो आपको शिफा बख्श देने की कुदरत रखता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी, वंडरफुल लॉर्ड। हम सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु के नाम को देते हैं, क्योंकि वो हले मुश्किलात जो अपने लोगों की दुआओं का सुनकर जवाब देता है। आमीन, प्रेज जीसस। हेलो। Hello? Yes, brother, welcome back. What happened? I don't know what is going on because your voice is not coming that time. So, It said that the host muted my mic. So something you pressed over there shut me off. but I not sure. I don't know what happened that time. So I actually share the word of God right now, although I was not prepared that time. So I want you pray for the salvation people and sick people right now. You want me to pray for what now? Pray for salvation. For who? For everybody listening? Yes, those are listening, because Okay. many people need to repent and accept the Jesus Christ. So you pray for the salvation and for the sick people. Okay. Now, Jesus claimed in John 14:6, he said, referring to himself, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. It's not मेरे about a अजीजों, religion. जितने भी आप बाइबल टीवी पर देख रहे हैं, कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। यस ब्रदर, Right. This is what God's word says. Okay. ये This is God. खुदावंद का कलाम फरमाता है, ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। All right. Now, there's a lot of religions in the world. बहुत सारे मज़ाहब है दुनिया के अंदर, And there's not many ways to heaven. तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आसमान तक पहुंचने का रास्ता हो, खुदावंद तक पहुंचने का रास्ता हो। Only one way. सिर्फ एक रास्ता है, It's the Lord Jesus Christ. और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु के थ्रू हम जा सकते हैं। He suffered and shed his blood. मेरे अजीजों, वो मुसीबतों में पड़ा, दुखों में पड़ा, उसका खून बहाया गया, And gave his life on the cross to pay the sins of the world. और हमारे गुनाहों की कीमत उसने सलीब पर चुका दी अपना पाक खून बहाकर। John 3:16. अगर आप यूहन्ना की अंजील 3 बाब और 16 में देखें, For God so loved the world तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया that he gave his only begotten son, that's कि Jesus, उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को मेरे और आपके लिए बख्श दिया, that whosoever believeth in him ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए should not perish, हलाक ना हो, but have everlasting life. बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। So if you want to know for sure that you're going to go to heaven, you must call upon the Lord to be saved. अगर आप भी मेरे अजीजों खुदावंद तक पहुंचने की रसाई करना चाहते हैं कि खुदावंद तक पहुंचे, तो फिर एक ही रास्ता है कि तौबा करें। Yeah, you need to repent. That means you need to turn and change your mind and turn to the Lord and call upon him. आपको तौबा करने की जरूरत है, आपको यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। For the Bible says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. मेरे अजीजों, कलाम में लिखा हुआ है कि जितने भी मेरे अजीजों खुदा उनको कबूल करते हैं, उन्हें बेटे होने का हक बख्शता है। And here's the prayer. Now you're not going to just say these words, you're talking to God. आपने मुझसे नहीं बल्कि खुदा से ये दुआ करनी है। All right. Bow your head and close your eyes.
तो आए फिर अपनी आंखों को बंद करें and pray this prayer to God. और आइए फिर ये दुआ कीजिए खुदावन से। Our Heavenly Father, ऐ पाक खुदा, आसमानी पाक खुदा, in Jesus' precious name I pray. यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में ये दुआ करता हूँ। Lord, I come to you now मैं खुदावन तेरी हजूरी में आता हूँ and I ask you to forgive me of all my sins. और मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि मेरे गुनाहों को माफ कर दे। I do believe in my heart मैं पूरे दिल के साथ तुझ पर ईमान रखता हूँ that the Lord Jesus Christ, कि तू ही खुदावन यीशु मसीह है, that he suffered, जो मेरे लिए मुश्किल में पड़ा, shed his precious blood, तूने अपना पाक लहू मेरे लिए बहा दिया and died on a cross for me. और मेरे लिए तू सलीब पर मर गया। Now, Lord Jesus, अब है मेरे पाक खुदा, I call upon you मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ and receive you into my life कि मेरी जिंदगी में आ as my Lord and my Savior. और मेरा खुदावंद हो और मेरा छुड़ाने वाला। Thank you for saving my soul. ऐ पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे माफ किया In your name, Lord Jesus, I pray. और यीशु के नाम से ये मैं दुआ करता हूँ। Amen. Amen. Hallelujah. Praise Amen. Jesus. Praise We the Lord. give all glory to our Lord. Hallelujah. And we welcome those people who repent and accept the Jesus Christ. Amen. So thank you so much, my dear brother. No, time is because many people are watching us in all over the world. Many people in USA also watching us. So many people are suffering in different diseases, sickness. So I request you, please, you pray for the sick people Okay. also. Let's pray. Let's pray. Dear Heavenly Father, आसमानी खुदावन, we know that your Son, our Lord Jesus Christ, हम यीशु मसीह के बेटे के नाम से तेरी हुजूरी में आते हैं, that he's the same yesterday, today, and forever. जो आज और कल बल्कि अब्बा तक यकसा खुदा है। He is the great physician. ऐ पाक खुदाम, तू ही हले मुश्किलात है, He is the light of the world. क्योंकि तू ही जिंदगी का मालिक है। He is the Prince of Peace. तू ही हले मुश्किलात और प्रिंस ऑफ पीस है। And so we come only by the precious name of Jesus. और हम सिर्फ तेरे ही कुदरत वाले नाम के हजूरी में आकर तुझसे दरवा करते हैं। That, Lord, that you would touch these people ऐ पाक खुदाम, देख इन प्यारों को यीशु के नाम से छू ले, who need a healing touch in their body, जिनको शिफा की जरूरत है, यीशु के नाम से इनको शिफा बख्श दे, in their soul, इनकी रूहों को अपनी हजूरी में ले ले and a touch in their spirit. और इन यीशु के नाम से ऐ पाक खुदा इनको छू ले। Thank you, Lord, for the promises that you give us in your word. ऐ पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे सारे वादों के लिए जो तूने हमसे किए हैं। Thank you for your precious Holy Spirit. ऐ पाक खुदा, तू ही कुदरत वाला खुदा है, तेरे ही प्यारे मीठे नाम से ये करते हैं दुआ। And thank you one day, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, all of us that have been saved by the blood of Jesus, कि तूने हमें अपने पाक लहू से महफूज कर लिया, will meet you face to face in heaven. ताकि हम ऐ पाक हम रूबरू तुझे देख सके आसमान के ऊपर। Until that day, Lord, और पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, please help us to be the godly people that we need to be. ऐ पाक खुदा, देख जितने भी तेरे प्यारों की जरूरियात हैं, एक एक की जरूरत को पूरा कर। And to bless your holy name. और हम यीशु के नाम से ये दुआ करते हैं। In your name, Lord Jesus, we pray. और हम यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं। Amen. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. We give all glory to our Lord. So thank you so much, my brother, because you pray for the salvation and sick people. And next time, by the grace of God,
we definitely listen you share the word of God on Bible TV. Yes, yes, ma'am. I'll come back on and preach the message God gave me about a storm is coming. Yes. So at the end, what you want to say the viewers of Bible TV? I'm sorry? At the end, we are going to finish. So Okay. what you want to say something? All right. I want to give a scripture. Proverbs Yes. 3, 5, and 6. Proverbs 3, 5, and 6. Right. Trust in the I'm Lord. sorry. You want to say it? Translate it? Okay. Proverbs 3, 5, and 6. मेरे अजीजों हम अमसाल की किताब 3 बाब और 5-6 वर्ष में देखते हैं Trust in the Lord खुदावंद पर तवक्कल करें with all of your heart अपने पूरे दिल के साथ and lean not to your own understanding. और मेरे अजीजों पूरी जान और रूह के साथ In all thy ways और हर एक बात में acknowledge him, उसको जाने और पहचाने and he shall direct your path. और वो फिर आपके सारे रास्तों को हमवार कर देगा What a mighty God we serve. क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है And thank you for having me on Bible TV. और मैं शुक्रगुजार हूँ बाइबल टीवी का भी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया God bless you all. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे Amen. Thank you so much, my dear brother. And next time, by the grace of God, you will share the word of God and we will be blessed by it. Okay. Thank you. I'll call Yes. you soon. Thank you. I'll call you back. Amen. Amen. So जितने भी बाइबल टीवी पर देख रहे हैं आप खुदावंद आपको अपनी प्रोटेक्शन अपनी पनाह में महफूज रखें हमें इजाजत दीजिए God bless all of you. Keep watching Bible TV. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Amen.